اپنی جو میری کتاب ہے اسے میری چپ نے رلا دیا، جو وہ میں نے اپنی بیگم کے نام منسوب سنا کی۔ دیجیے پلیز۔ یہی غزل سنا دیتا جی جی ہوں۔ بالکل۔ اس سے پہلے ایک دو شعر اور کہ کاش ایسا ہو کہ اپنی دوستی قائم رہے، روز ہم ملتے رہیں اور تشنگی قائم رہے۔ واہ واہ، یہ بھی بیگم کے لیے۔ ویری نائس۔ کاش ایسا ہو کہ اپنی دوستی قائم رہے، روز ہم ملتے رہیں اور تشنگی قائم رہے، لفظ خوشبو ہی رہے تیری سماعت کے لیے، میری باتوں میں ہمیشہ تازگی قائم رہے، واہ واہ، ویری نائس۔ میری باتوں میں ہمیشہ تازگی قائم رہے، جان لے مطلب یوں ہی تو ان کہے الفاظ کا، میری خواہش ہے کہ تیری سادگی قائم رہے، کیا بات ہے۔ اس لیے میں شام ہوتے ہی جلاتا ہوں چراغ، بعد سورج کے زمیں پر روشنی قائم رہے۔ قائم رہے۔ اسے اپنے فردہ کی فکر تھی، وہ جو میرا واقف حال تھا، وہ جو اس کی صبح عروج تھی، وہی میرا وقت زوال تھا۔ واہ 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 واہ، بہت اعلیٰ جی، یہ تو دل کو ٹچ کیے بہت اسے زیادہ۔ اپنے فردہ کی بات کر رہا ہوں، اسے اپنے فردہ، یہ ڈاکٹر امجد نے بھی گائی، غلام علی نے بھی بڑے، بہت خوبصورت جی، مقرر اسے مقرر۔ اپنے فردہ کی فکر تھی، وہ جو میرا واقف حال تھا، وہ جو اس کی صبح عروج تھی، وہی میرا وقت زوال تھا، میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود فنا کے سفر پہ تھا، اسے روکنا بھی محال تھا۔ کیا بات ہے، بہت اعلیٰ۔ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود سراپا سوال تھا، کیا بات ہے۔ اور وہ جو اس کے سامنے آ گیا، یہ پورے ایک ناول کی طرح ہے، ذرا تین چار شعر اور۔ نہیں نہیں، ضرور پلیز۔ وہ جو اس کے سامنے آ گیا، وہی روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا، کیا بات۔ دم واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا، وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلہ نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلہ نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا۔ میرے ساتھ لگ کے وہ رو دیا، مجھے فخری اتنا وہ کہہ سکا، جسے جانتا تھا میں زندگی، وہ تو صرف وہم و خیال تھا۔ کیا بات ہے، ویری نائس جی، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رائے صاحب، ان سے اور ان کی شاعری سنیں گے۔ کیا خوبصورت۔ واپس آ چکے ہیں ہم، اور زارا کراچی سے لکھتی ہیں، اس شرط پہ کھیلوں گی پیار پیار پیا پیار کی بازی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری۔ پھر جی مشتاق لکھ رہے ہیں، ہم تو وفا کرتے رہے، ان کو وفا نہ آئی، پتھر سے دل لگا کر ہم نے چوٹ کھائی۔ تھوڑا ہلکا تھا لیکن ٹھیک تھا، گزارا ہو ہی گیا۔ ایک جی صادقہ سے کہہ رہے ہیں، طوفان میں کشتی کو کنارے بھی ملتے ہیں، طوفان میں کشتی کو کنارے بھی ملتے ہیں، جہاں میں لوگوں کو سہارے بھی ملتے ہیں۔ یہ وہ رکشوں کے پیچھے والے شعر نہ بھیجیں، ویسے کوئی رکشے کے پیچھے لکھا ہوا شعر، ذرا تھوڑا وزندار شعر بھیجیں۔ سر اب کب سے اپنے شعر و شاعری کا شوق ہوا، کس عمر سے لکھنا شروع کیا؟ بچپن سے۔ بچپن سے؟ سیریسلی؟ نہیں، میں کہ سارے یہی جواب دیتے ہیں، بس یہ ساتھ ہی ہوتا ہے زندگی میں، بس مطلب تھوڑے دن ہی ہوئے نا بچپن تو بس۔ یہ احساس لیکن کب آپ کو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز سیکھی جا سکتی ہے، لیکن پوئٹری ایک آمد ایسی چیز ہے کہ جو سیکھی نہیں جا سکتی۔ جب میں اسکول میں تھا تو میں ڈرامہ بھی اور ڈیبیٹ، یہ میری پہلی وجہ شہرت ڈیبیٹ ہے۔ بالکل، آپ کا جو میں دیکھ رہی تھی نا کہ ٹائمنگ، ایک تو شعر پڑھنا بھی ایک آرٹ ہے، ایک تو لکھنا تو آرٹ ہے ہی، لیکن اس کو پڑھنا پھر وہ جس طریقے سے آپ ایکسپریشن اپنا دیتے ہیں، ایون وہ جو آپ کا کدی تھے میکے جانی بیگم، اس میں اگر آپ کے کوئی اور پڑھے تو وہ شاید اتنا فنی نہ بھی لگے۔ بس یہ پڑھنا بھی ایک فن ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ بس وہ ڈیبیٹ سے ہی آیا، میں منتقل ہوا ڈیبیٹ میں یونیورسٹی، پھر اور رول آف آنر، ہر سال ٹرافیوں کے ڈیر، اور بس اللہ نے وہیں سے پھر یہ ہوا کہ شاعری تو ساتھ چلتی تھی اسکول سے۔ برسات کے، یہ مجھے یاد ہے اسکول کے زمانے کا شعر ہے کہ برسات کے موسم سے تجھے پیار بہت تھا،
अब देख ले आकर मेरी रोती हुई आंखें। वाह 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 वाह, क्या तो बात है। फिर ये किसके साथ लिए पढ़ा था वैसे? तो एक हाँ, वो कॉलेज टाइम में तो यही वो होता कहा है ना गुलाम मोहम्मद कासर ने कि करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई कुछ काम करना भी नहीं है, कोई काम करना भी नहीं और आता। वो शुएब का जो है कि अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है, इस तरह के इस तरह के कामों में मोहब्बत तो है ना। वो खलील जिब्रान ने बड़ी खूबसूरत कहा, मोहब्बत आपसे कुछ नहीं लेती क्या बात, सिवाय मोहब्बत के, सब और मोहब्बत आपको कुछ नहीं देती सिवाय मोहब्बत की। मोहब्बत जब तुम्हें अपनी तरफ बुलाए तो दीवाना वार उसकी तरफ बढ़ो, चाहे उसकी आस्तीन में खंजर ही क्यों ना। क्या बात है, हम मोहब्बत के मारे हुए लोग। सही बात है। और आस्तीन में वैसे खंजर ही मिलते हैं। ग्रीन टी आपको सबस चाय जो हमने बनाई है वो कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी सबस चाय बनी। और सर्दियों का जो है ना मज़ा दुबाला हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, अगर शायरी में अगर कोई शायरी करना चाहता है तो उसको सीखना क्या होगा उसके लिए? देखिए, असल में मैं तो ये समझता हूँ कि अंदर आपके रिदम हो ना, मुतरन्नम होना चाहिए अंदर से बंदा। सही सही। शायरी के लिए जो चीज़ है ना वो ये है कि आपको समझ लगती हो गीत की, मतलब रिदम जरूरी शायरी है। जो है ना ये गुफ्तगू के मजीद, यानी गुफ्तगू की सबसे खूबसूरत शक्ल जो है शक्ल है। और मैं ये समझता हूँ ये सदी भी जो है ये गज़ल की सदी है। सही सही। गज़ल देखे ना कब से जिंदा है, गालिब मीर से लेके फिर यहाँ तक मुजना चीज़ तक गज़ल का सफ़र रवां दवां है। नज़्म का भी एक है लेकिन गज़ल का सफ़र बहुत। अच्छा, नज़्म तो आज़ाद नज़्म जो होती है, जो कुछ भी लिख दें उसमें? नहीं, उसमें भी औज़ान तो होता है। वो आज़ाद नज़म क्यों कहते हैं उसको? कहते हैं आज़ाद नज़म। आज़ाद नज़्म ये होती है कि उसमें काफ़ी रदीफ़ की पाबंदी नहीं है। अच्छा, मतलब जो आपका दिल कर रहा ख्याल है, लेकिन वो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो होगी ना कि नहीं, वो औज़ान तो होता है उसमें। अच्छा, ठीक, औज़ान होता है, ठीक। मिसरे छोटे बड़े होते हैं लेकिन एक बहर होती है, एक बहर। उस बहर में आप लिखते हैं, सिर्फ काफ़ी रदीफ़ नहीं होता। अच्छा, आपको कभी किसी ने क्रिटिसाइज किया है कि शायरी तुम क्या लिखते होते हैं ना, बड़े शायर जो होते हैं या आपके कलीग्स? नहीं, अभी तक तो नहीं। कभी नहीं, कभी किसी ने किया कोई कंपटीशन? मैं लिखता ही आवाम के लिए हूँ, आपको पता मैं फैमिली पोइट भी हूँ, तो मैं तो बातें दिलों की करता हूँ, घरों की करता हूँ। लोग कहते हैं आप हमारे घर में घुस के लिखते हैं। सही बात है, हर किसी के दिल के घर की बात होती है। अच्छा जी, माँ के लिए कभी? हाँ, वो माँ के लिए तो मेरी जो पंजाबी किताब आएगी जी, मावा ठंडियाँ छावा, मैंने पंजाबी में ज़्यादातर लिखा ही माँ पे। क्या बात है ना। माँ को मैं कहता हूँ माँ दरगाह, यानी कहता हूँ कि आप बाहर पीरों से दुआ कराते हैं, पीर तो घर में बैठा, पीर घर में बैठा है। सही बात है। तो माँ होवे ते खाली वेड़ा भरिया भरिया जापे, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਪੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। क्या बात। ये वो नज़्म है जो मैं मज़ाहिया मुशायरे में मुझसे और अनवर साहब से, उनकी अम्बड़ी सुनते हैं लोग और मेरी माँ सुनते हैं। मज़ाहिया मुशायरे में लोग खड़े होकर कहते हैं कि जब पेके सुना लेकिन आप सुनाए ना, बिकॉज़ बहुत से हमारे फैंस भी कह रहे हैं और सब लोग, अब ये तो आपने जिन्हां घरां विच मां नहीं हुंदी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਣ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗਣ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਮਾਵਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਆਖਣ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਾਵਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਆਖਣ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਲੈਨੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। क्या बात। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਲੈਨੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸਫਰੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। क्या बात। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਫਖਰੀ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। क्या बात है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ सब माओं के लिए है जी, ये आज हम डेडिकेट करते हैं ये इतनी खूबसूरत। मैंने लिखी अपनी माँ के लिए थी लेकिन सब माओं के लिए। देखिए माएँ तो सबकी माँ तो फिर माँ है ना, 70 माओं। और नूर मैं इंग्लैंड जाता हूँ हर साल, 10 साल से जा रहा हूँ कि वहाँ 2-2 डब्बे टिश्यू के लग जाते हैं
जब मैं परदेसियों की गज़लें सुनाता है हूँ, ना, सही बात। फिर माँ की सुनाता हूँ, मैं जितना हंसाता हूँ फिर उतना रुलाता भी, खुद भी रोता हूँ। अच्छा ये भी होता है कि आप देखिए ना, कुछ लोग होते हैं कि हंसी में या मजाक में अपनी फीलिंग्स बहुत छुपाते हैं ना, मतलब वो हंस वक्त वो कहते हैं ना कि जी बड़ा अच्छा किसी ने कहा है कि रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता, मुस्कुराने के वाले के साथ मुस्कुराएंगे, आपके साथ हंसते, अगर आप हंसते हैं तो आपके साथ दुनिया चलेगी, अगर आप कहीं रो रहे हैं तो आप अकेले बैठ के रो रहे होंगे। तो कहीं आपने जो मज़ाहिया जो पोइट्री की अपना दुख ज़्यादा छुपाने के लिए तो नहीं एक वो चेहरा वो लगाया हुआ है, या शौक था आपको? नहीं, शौक नहीं था। अच्छा। ये इसके मुहर्रक मेरे दोस्त बने। अच्छा। बहुत से दोस्त चाहते थे कि तुम इतने फिक्रेबाज हो। अच्छा फिक्रेबाजी भी करते थे तो ये इसलिए तो मैं मुनीर नियाज़ी को पसंद करता हूँ। सही मुनीर नियाज़ी साहब कहते हैं कि कल 2 बंदे मेरे वाल आए, एक हौली हौली झूठ बोलदा सी, एक फर बहुत आला जी। ये बात मैंने कहा मुनीर नियाज़ी ही कह सकता है। अच्छा लेकिन पंजाबी में ना मुझे लगता है पंजाबी में कुछ अल्फाज ऐसे हैं इतने खूबसूरत लगते हैं जो उर्दू में भी नहीं हो सकते, कभी इंग्लिश में भी नहीं हो सकते, फारसी में भी नहीं हो सकते। पंजाबी का अपना देखिए ढोलना कोई है वर्ड, और इस तरह से 2-4 प्यारे प्यारे ऐसे लफ्ज हैं। माइया, अब माइया को आप माइया जो पंजाबी में माइया मजा है ना, वो पंजाबी में भी शायरी का एक अपना ही लुत्फ है। आप देखिए गाने पंजाबी गड्डी आई है स्टेशन पे, परा हट वे बाबू सानू माइया वेखन। माइया मैंने उसको उलट भी किया है, गड्डी आई है स्टेशन पे, परा हट वे माइया सानू बाबू वेखन। बाबू भी आ गया। अच्छा हंसाना जो है ना नूर, मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। जी सही कह रहे हैं। अच्छा मैं जब इस तरफ आ गया, इसके मुहर्रक डॉक्टर इनाम बने। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम आओ, टीवी का एक मुशायरा था जो मैंने पहली नज़्म कही, कुछ 8-10 साल से ये हुआ, बस अल्लाह ने इसमें बहुत शोहरत दे दी, तो फिर मेरे लिए एक जिम्मेदारी बन गई। हसाना, आपसे बिल्कुल अच्छी बात की। कॉमेडी, वैसे कॉमेडी इवन जो एक्टर्स होते हैं ना, कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी को हंसा रहा है ना, वो कहते हैं ना घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं करें, हाँ, ये उसका रोते हुए इंडिया के जो को हंसाया जाए। इंडिया के शायर हैं शायद, मैंने तो हाँ, गाना ये सुना उनका था। जो वो गीत लिखते हैं, गाना गीत लिखते हैं ये बड़े, लेकिन हमारे शायर जी कमाल है बहुत। निदा फाजली। अच्छा निदा फाजली। अच्छा, हाफिजा कैसे अच्छा होता है हमारे शायरों का, ऐसे याद हो जाते हैं आपको भी, जैसे सारी दुनिया के शायरों के नाम भी याद है और शायरी भी याद है। बस वो है, वो डिबेट की वजह से। डिबेट की वजह से। पर पढ़ते हैं, आपका अपना फेवरेट पोएट कौन है, मोस्ट फेवरेट? इकबाल तो, इकबाल की तो बात ही और है ना, बिल्कुल। लेकिन अभी इस दौर में अगर आपका देखें, इसमें मुझे मुनीर नियाज़ी, नासिर काज़मी और नदीम साहब, क्या बात है, मुर्तज़ा बरलास, बड़ी खूबसूरत मुज़ाहमती उनकी पोइट्री है। फिर जालिब फैज़ तो सबको पसंद है, सबको ही पसंद है जी। फिर अपने अमजद इस्लाम अमजद साहब की नज़में मुझे बड़ी पसंद है। खलील जिब्रान के जैसे आपने जिक्र किया। फिर बाकी तो एक पूरी, मैं तो कहता हूँ जिसने एक भी अच्छा शेर कहा है वो ज़रूर पढ़े, और वो शायर है, बिल्कुल कंप्लीट शायर है। अच्छा जी, एक जो मेरी फेवरेट है, अब वो एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कदी ते पैके आनी बेगम वो सुना दें। तो जितने भी शौहर हजरात हैं वो गौर से सुने, और बेगमात जो हैं वो उस पर मुस्कुरा दें। लेकिन उन्होंने जवाब भी लिखा था उसका, बेगम की तरफ से भी जवाब लिखा था, वो भी हम इनसे सुनेंगे। यू टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। असल खूबसूरती होती है